Okay, so we are once again connected to just develop the practice for certain areas of CFA level 3 exams approaching 1 month from now, correct? So I'm sure you are putting in your best. Many of you, or most of you, are still working, and job pressures are there in Saturday, Sunday, the most significant time for you to study. Last week we had no session. Last week, I think one session was taken by one of our alumni, Buddhaditya sir, and that was a great session, but unfortunately he failed to record the session, so accordingly the recordings are not available. He was telling me that in that session he made all of you, keep on replying to the answers. Is it Bhushan, Shivik, Tushar, Anshul, Krishna? If you attended the session prior to that, मैंने 2 सेशन लिया था. Okay, I'm not getting a response, so I will move ahead. Okay, अब आया reply. Shivik, yes sir, it was great. Anshul, perfect. चलो अभी मूव करते हो. So I am sharing this thing with you today. We are going to do questions on derivatives. और उस पे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे. ठीक है, बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द फीडबैक दैट डेरिवेटिव्स में वन ऑफ द टॉपिक्स है जहाँ पे खराब परफॉर्मेंस हुआ है स्टूडेंट्स का इन द लास्ट एग्जामिनेशन. लेट्स सी क्या प्रॉब्लम हो गया था. तो क्वेश्चन सिंपल है पर उसमें मैं ट्विस्ट एंड टर्न करूंगा. So Hartman CFA is a portfolio manager at Northwich Capital Partners. One of Hartman's clients holds 200 million balanced portfolio, currently allocated 60% equity, 40% bond, यानी कि 120 and 80. The client wants to reduce equity to 45% and increase bond to 55%. Typical sum. Wants to keep the equity portfolio beta unchanged at 0.98 and raise the bond portfolio's modified duration from 5.8 to 6.2. She will use equity index futures and bond futures to implement the changes. The risk-free rate is 1.75%. So I think you must be getting the feel. 200 million का 15%, 30 million उसको allocate करना है from equity to bond और bond का बीटा को change करना है from 5.8 to 6.2. That's the crux. 200 million का 15%, 30 million जो है उसको allocate करना है from equity to bond. तो it's like equity to cash, cash to bond. ठीक है, और बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है उसको 5.8 से 6.2 करना है. इक्विटी का बीटा को चेंज नहीं कर रहे. इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू प्राइस इनटू मल्टीप्लायर 1,10,000, बीटा 1.02. बॉन्ड फ्यूचर्स, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यील्ड बीटा 1. ओके, तो यहां तक ये वाला पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है. कैन आई चेक आप लोग का आंसर्स आया क्या? बिकॉज this is not a teaching, this is an examination practice going on. So let me check if you have got the answers. So I'm checking on the chat in case you are calculating. सारा डेटा आपके सामने है. प्लीज कैलकुलेट हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर्स टू सेल. भूषण, कृष्णा, अंशुल, शिविक, हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर्स टू सेल? Yes, please. How many index futures to sell? So आदित्य का आंसर आया 262 futures to sell. आदित्य मेहरा 262 futures to sell. बाकी लोग का जवाब आ रहा नहीं है. मे बी कैलसी लेके बैठे नहीं है. The chat is in front of me in case you are typing. I can see the chat. Aditya Mehra, 262 futures to be sold. So it was simple. 30 lakhs into 0.98 का इक्विटी एक्सपोजर को किल करना है. 30 lakhs, 30 million, sorry. 30 million into 0.98 इतना इक्विटी एक्सपोजर को किल करना है. तो डिवाइडेड बाय 1,10,000 इंटू 1.02. ओके, मेरे को तो हर बार फॉर्मूला पसंद नहीं है कि बीटा टी माइनस बीटा पी, क्या बीटा पी करते रहे. बेसिकली 30 मिलियन इंटू 0.98 का इक्विटी एक्सपोजर को किल करना है. देयरफॉर वी विल सेल फ्यूचर्स. तो 262 फ्यूचर्स आ रहा है सबका, शिविक का भी.
विद्या का भी केवल कृष्णा का 288 आ रहा है, गॉड नोज हाउ। कृष्णा को छोड़ के बाकी सबका 262 आ रहा है। कृष्णा का भी 262 आ गया। तो 262 फ्यूचर सेल, 262 फ्यूचर सेल। ओके, 262 फ्यूचर सेल करना है। ओके, उसके बाद अपने को इसको बॉन्ड में लगाना है, और बॉन्ड का जो बीटा है उसको 5.8 से 6.2 करना है। ना यू ऑल डू इट बाय फॉर्मूला, मैं तो फॉर्मूला से नहीं करता हूं। आई डू इट लाइक दिस वे। रूपी ड्यूरेशन एक्सपोजर, जैसे डॉलर ड्यूरेशन होता है, डॉलर ड्यूरेशन एक्सपोजर माने डॉलर ड्यूरेशन के हेल्प से। तो बेसिकली वी हैव 80 मिलियन, उसका ड्यूरेशन इज 5.8। नाउ वी हैव 30 मिलियन, उसका ड्यूरेशन इज जीरो, दिया हुआ नहीं है। बी वेरी केयरफुल। एग्जाम में हो सकता है मनी का ड्यूरेशन दिया रहेगा, कैश का ड्यूरेशन 0.25, इट्स नॉट गिवन, तो आई एम टेकिंग जीरो। एंड इसको पहुंचाना कहां पे है? 110 मिलियन into 6.2. See whether you're okay. 80 million into 5.8 plus 30 million into 0. That is the existing dollar duration. And we have to make the dollar duration this. What is the gap? Anyone, please, what is the gap? 80 million into 5.8 plus 30 million into 0. That is our existing dollar duration. And we want to make it 110 million into 6.2. ये गैप कितना आ रहा है अंशुल कृष्णा? फॉर्मूला से भी कर सकता था, फॉर्मूला से नहीं करना चाह रहा हूं। व्हाट इज आवर डॉलर ड्यूरेशन एक्सपोजर? तो 80 मिलियन इंटू 5.8 प्लस 30 मिलियन इंटू जीरो। जीरो के बारे में बी केयरफुल, एग्जाम में हो सकता है आपको कैश का ड्यूरेशन दिया रहेगा 0.25, तो 30 मिलियन इंटू 0.25 होता है, यहां दिया हुआ नहीं है। और पहुंचाना है 6.2, तो टोटल 110 मिलियन का 6.2 करना है। व्हाट इज द गैप? आई थिंक आई शुड सिट विद द कैलकुलेटर। वन सेकेंड। Yes, I have the calculator with me since I'm not getting good response. So 110 into 6.2. This is what we want. And 80 into 5.8. This is what we have. So if we deduct that, I think 218 is the gap. 218 is the gap. तो 218 मिलियन का अपने को क्रिएट करना एक्सपोजर। क्रिएट करने के लिए 218 मिलियन, 218 million divided by what is the 1,02,000 into 7? 1,02,000 into 7. Okay, 1,02,000 into 7. Can you please divide it? 1,02,000 into 7. 218 million divided by 1,02,000 into 7. 218 million divided by 1,02,000 into 7. 305.32. So 305 future sell. 305 फ्यूचर सेल करना है, दैट्स माई आंसर। 305 फ्यूचर सेल मैंने फॉर्मूला से नहीं किया है। अब बाय बाय, सॉरी बाय, भूल के, सॉरी। या 305 फ्यूचर्स बाय अवधेश, 305 फ्यूचर्स बाय। अपने को फ्यूचर्स का एक्सपोजर बढ़ाना था ना, अपना कमती एक्सपोजर है, बढ़ाना है। 305 फ्यूचर्स बाय, यस बाय होगा। 305 फ्यूचर्स बाय, तो इक्विटी फ्यूचर्स 262 सेल एंड 305 फ्यूचर्स बाय। अगर फॉर्मूला वाइज करेंगे, फॉर्मूला वाइज, तो फॉर्मूला वाइज फर्स्ट वाला होगा x इज इक्वल टू बीटा टी माइनस बीटा पी इंटू वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइड बाय एफ इंटू एम इंटू बीटा एफ। ये फर्स्ट पार्ट। तो टारगेट बीटा जीरो था, एग्जिस्टिंग बीटा 0.98 था, मल्टीप्लाइड बाय 30 मिलियन डिवाइडेड बाय एफ इंटू एम, दिया हुआ है 1,10,000, और बीटा ऑफ फ्यूचर्स दिया हुआ है। वो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा -262। और जो सेकेंड पार्ट था उसमें फिर धीरे धीरे करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट करना पड़ेगा, पहले N1, वो जो अपने को कैश को चेंज करना है,
तो उसमें होगा dt माइनस dp इंटू वीपी डिवाइडेड बाय क्या फ्यूचर्स प्राइस इंटू ड्यूरेशन ऑफ फ्यूचर्स. सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट ड्यूरेशन क्या है 5.8. 5.8 पहुंचाएंगे पहले. माइनस 0 इंटू 30 मिलियन. 30 मिलियन डिवाइडेड बाय क्या था 1,02,000 इंटू 7. इससे N1 आएगा. और अब जो टोटल पोर्टफोलियो है उसको 5.8 से 6.2 ले जाना है. तो हो जाएगा 6.2 माइनस 5.8 इंटू 110 मिलियन डिवाइड बाय 1,02,000 इंटू 7. तो ये N2 आएगा. N1 प्लस N2 मिला के 305 आएगा. तो मेनी पीपल डू इट दिस वे. एक एक स्टेप में करते हैं कि पहले 30 मिलियन को सर 0 से 5.8 पे ले जाएं. अब टोटल में 80 प्लस 30 110 हो गया 5.8 पे. उसको 6.2 पे ले जाएं. इज दिस क्लियर? अगर किसी के भी क्लियर नहीं है तो प्लीज हैंड रेज कर सकता है. अगर किसी को भी क्लियर नहीं है तो हैंड रेज कर सकता है. इफ इट इज नॉट क्लियर यू कैन रेज योर हैंड. वी कैन डिस्कस. ओके, वंश ने हैंड रेज किया है. वंश कहाँ चला गया? वंश. वंश ने हैंड रेज किया. 1 सेकेंड. वंश. तो वंश यू कैन टॉक. You have to unmute yourself and talk, Vansh. हेलो। Yeah, Vansh, tell me. हाँ सर, मेरे को पूरा तो समझ आ गया सर, लास्ट में डाउट आ रहा था बस। तो उस केस में बिलीव मी, मेरे को क्या लगता है ना कि आपको थोड़ा सा मैंने मैं जो रफ में कर रहा था, आपका मन है कि मैं एकदम स्लो स्लो करूं. तो मैं बोलना चाह रहा था अपने क्या पढ़े हैं फॉर्मूला वाइज. आई थिंक नंबर ऑफ इक्विटी फ्यूचर्स टू सेल इज टारगेट बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा इनटू द अमाउंट जिसको अपने को कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय फ्यूचर्स इनटू मल्टीपल इनटू बीटा ऑफ फ्यूचर्स. आई थिंक ये पार्ट पूरा क्लियर होगा आपको. हमें जीरो पे पहुंचाना है. हमारा 0.98 है. तो 0 - 0.98 इंटू 30 मिलियन डिवाइडेड बाय अपने को एफ इंटू एम दिया हुआ है 1,10,000 था शायद इंटू 1.02 था. तो इससे अपना -262 आ गया. 262 फ्यूचर सेल. इस पे कोई डाउट है क्या वंश? नहीं सर, ये पूरा क्लियर है। उसके बाद जाके क्या था? अब अपना जो 30 मिलियन है वो तो कैश बन गया. तो इट केम इन द बॉन्ड का स्लीव. ऑलरेडी 80 मिलियन का अपना ड्यूरेशन 5.8 चल रहा है. अब इसमें 30 आ गया है. और 30 मिलियन का ड्यूरेशन अब 0 है. मैं बोला केयरफुल रहना, इसका ड्यूरेशन 0.25 हो सकता है. तो ये मेरा डॉलर बीटा एक्सपोजर है. मैं जैसे समझाना चाह रहा था कि इसको मल्टीप्लाई करके डॉलर बीटा एक्सपोजर निकाल लो कि 80 मिलियन इंटू 5.8 प्लस 30 मिलियन इंटू 0. ठीक है, वो निकाल लो. तो वो तुमने निकाल लिया. और चाहिए क्या? चाहिए ये 110 मिलियन का डॉलर बीटा एक्सपोजर. अपने को 6.2 चाहिए. इतना चाहिए. तो इसमें से ये लेस कर दो, पता चल जाएगा हमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए. और जितना एक्स्ट्रा चाहिए उतना अपने को टी बॉन्ड फ्यूचर्स बाई करना पड़ेगा. तो डिवाइडेड बाय फ्यूचर्स प्राइस इंटू ड्यूरेशन. ये सर। मतलब ये सबसे स्मूथ चीज है पूरे सिलेबस में. मतलब मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन के हेल्प से अगर आप थोड़ा सा मतलब रफ पेज लेके राइट लेफ्ट करोगे ना, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो आपका पूरा एरिया कंप्लीट हो जाएगा. और एरिया कंप्लीट होते ही आप ऐसे 3 4 5 क्वेश्चंस और कर सकते हो डेरिवेटिव के उस चैप्टर में जाके. तो जैसे ही आप 3 4 5 क्वेश्चंस करोगे पूरा एरिया खत्म. अब फिर ये वाला जो पार्ट है हमने नीचे में किया, इसको मैं बोला था लोग ऐसे नहीं करते जो मैंने करवाया. लोग कैसे करते हैं? स्टेप 1. लोग ऐसे करते हैं स्टेप 1. लोग का मतलब हो गया जैसे अंशुल. अंशुल ऐसे करती है. पहले वो कैश पे ध्यान देती है. सर कैश 30 मिलियन का है. उसका ड्यूरेशन जो है 0 है. अपने उसको 5.8 पहुंचाना है. तो 5.8 माइनस 0 dt माइनस dp और डिवाइडेड बाय वो जो 1,02,000 इंटू 7. तो उससे N1 आ गया. इतना फ्यूचर्स बाई करना पड़ेगा. तो अब हमारा 30 का भी ड्यूरेशन 5.8 हो गया. अब स्टेप 2 पूरा का पूरा जो 30 प्लस 80 110 मिलियन है उसका ड्यूरेशन हमें
6.2 पहुंचाना है 5.8 से, डिवाइड बाय 1,02,000 इंटू 7, तो ये N2 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा जो 350 आया था। ये फॉर्मूला वाइज हो गया। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है बिकॉज यू हैव अ फ्रेमवर्क, dt माइनस dp, bt माइनस बीटा टी माइनस बीटा पी। ठीक है। बट मेरे को लगता है कि अब लेवल 3 में आके थोड़े से समझना चाहिए कि यार क्यों इतना फॉर्मूला वाइज करते रहे। तो वंश, आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अभी तो ये क्वेश्चन जैसे थोड़ा बहुत समझ में आया आपको, सपोज अभी भी फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन जो दूर है वो तो खुद से कॉपी पेन लेके ही होता है दूर। ठीक है ना। ओके। और कोई हैंड तो मेरे ख्याल से रेज नहीं है। नहीं, जितेंद्र का भी है। जितेंद्र। यस जितेंद्र। सर गुड इवनिंग। गुड सर इवनिंग। सर जैसे ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का कल जैसे मॉक टेस्ट में भी यही क्वेश्चन आया था फॉर एग्जांपल। तो उस केस में सर जैसे वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड उसमें ही हमें ये बताना था कि कितने बॉन्ड्स हमें सेल करने हैं और कितने हमें बॉन्ड्स बाय करना है। एंड वी डायरेक्टली डू दी कैलकुलेशंस इन द रफ एंड वी हैव गिवन द आंसर। तो इज इट राइट फुल टू मार्क्स। गिव दिस? फुल मार्क्स। ओके। ओके। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। ये फिरंगियों को जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है ना, ये बहुत हाई हम्म। फाई लगते हैं। ओके। ठीक है ना, इस कारण से इतने मार्क्स होते हैं। डोंट हैव टू वरी, फुल मार्क्स है। ठीक है ना। ठीक है। श्योर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने। लेट्स मूव अहेड। एक सेकेंड। जस्ट वन मोमेंट। चैट में कुछ लोगों ने लिखा है, ऑप्शनल क्लास ऑफ दिस चैप्टर आर टू गुड एंड इट हेल्प्ड मी टू गेट the grip on this. They are too good. Aditya Mehra is saying. Raman is saying, sir, in this, can you please also explain the logic behind multiplying with conversion factor and not dividing by conversion factor in case of computation of bond futures? रमन, कन्वर्जन फैक्टर ज्यादातर यहाँ पे काम का नहीं है, क्योंकि अगर ये जो ड्यूरेशन बोल रहे हो ना, मैंने कहाँ पेपर जाता हूँ वहां पे मैं, आई एम गोइंग बैक टू द क्वेश्चन वंस, जस्ट वन सेकेंड। ओके, रमन किस चीज का इंडिकेशन दे रहे हैं? रमन इज टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड फ्यूचर्स का डेटा। हैव अ लुक प्लीज। जो बॉन्ड फ्यूचर्स का डेटा है, अंशुल गुप्ता इज आल्सो सेइंग सर आई आल्सो वॉच्ड ऑप्शन क्लासेस। तो अंशुल एंड देयर वाज वन मोर गाय ऊपर, वो दोनों रेकमेंड कर रहे थे, फर्स्ट स्टूडेंट जो था ना, वंश आई थिंक, कि आप ऑप्शनल क्लासेस का वॉच कर लेना। ठीक है, बोल रहे उस पर बहुत उस तरह से कराया हुआ है जैसे लेवल 1 में लिखा लिखाई करवाते हैं ना। तो मैंने इन केस, बट मेरे को तो लगता है इस क्वेश्चन को पकड़ के अगर सीधा बुक के क्वेश्चंस में जाते हैं तो 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, यू विल बी चैंपियन। एनीवेज, आई वाज सेइंग दैट यहाँ पे रमन जो बोल रहा था वो ये बोल रहा है कि सर ये फ्यूचर्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है, देखिए सब जन देखिए, फ्यूचर्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो ये फ्यूचर्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बदले अगर अपने को सीटीडी का मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया तो, बिकॉज आपको याद होगा लेवल 2 से कि जो टी बॉन्ड फ्यूचर्स है उस पे देर इज अ बास्केट ऑफ डिलीवरेबल बॉन्ड्स एंड उस पे से एक चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड होता है। तो वो जो चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड होता है उसी का ये जो ड्यूरेशन ऑफ फ्यूचर्स है ये सीटीडी का ही है। ठीक है, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द सेम, कि यही वाला पार्ट देगा। अब इफ यू आर ट्राइंग टू से दैट सर ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं देगा, वो लोग देगा सीटीडी का दाम, और सीटीडी के दाम से हमें एफ निकालना पड़ेगा, दैट्स अ वेरी फार फेचड थिंकिंग, कि एफ निकालना पड़ेगा अपने को सीटीडी के दाम से। और लेवल 3 में ऐसे नहीं वे लोग करते हैं, वो तो फिर लेवल 2 हो गया, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। ठीक है, तो आई थिंक ओवर थिंकिंग चल रहा है। कोई क्वेश्चन में है तो बताना कि सर इस क्वेश्चन में है, देखिए इंस्टीट्यूट का। आई डोंट थिंक सो। आगे बढ़ रहे हैं। एक सेकेंड। नॉर्थ ब्रिज डेरिवेटिव डेस्क ऑल्सो डेल्टा hedges the firm's option positions. The desk is short 3 equity index call options in exhibit 2. ओके, ये तीनों कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। बोल रहे हैं तीनों कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, सी माइनस, सी माइनस, सी माइनस। तो अपना नेगेटिव डेल्टा है, बिकॉज बोल रहा है डेल्टा हेज करते हैं।
तो डेल्टा हेज करने के लिए इनका एस प्लस करता होगा, डेल्टा एस प्लस। ओके, सी माइनस सी माइनस सी माइनस। सपोज ये वाला 10,000 सी माइनस है, ये 5,000 सी माइनस है, ये 8,000 सी माइनस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इन लोग का जो भी डेल्टा है उससे मल्टीप्लाई किए, 10,000 इंटू डेल्टा, 5,000 इंटू डेल्टा, 8,000 इंटू डेल्टा, वो जो आया जितना डेल्टा उतना स्टॉक बाय, तो डेल्टा हेज हो गया। एंड डेल्टा हेज स्टैटिक और डायनेमिक, डेल्टा हेज स्टैटिक और डायनेमिक, क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, पहले जवाब दो। डेल्टा हेज स्टैटिक और डायनेमिक? इट इज डायनेमिक, बिकॉज डेल्टा हर समय चेंज होते जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन शेयर प्राइस, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉलेटिलिटी। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्टॉक प्राइस, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉलेटिलिटी। तो डेल्टा हेज पोजीशन को संभालना बहुत डिफिकल्ट है। ये क्या कर रहा है, ये थीटा खा रहा है, ही इज ट्राइंग टू ईट अवे थीटा ना टाइम डी के। तीन कॉल ऑप्शंस को बेच रखा है और उसके साथ साथ डेल्टा हेज करता रहता है और टाइम डी के एंजॉय करता है। ओके, all three have the same expiration date, the same underlying index, and no material difference in implied volatility. ठीक है, सेम एक्सपायरेशन डेट दी है। मैं इसको बाद में चेंज करूंगा कि अलग अलग एक्सपायरेशन डेट होता तो क्या होता। वन वन वीक बिफोर एक्सपायरेशन द इंडेक्स इज एट 4440, वो बात का डेटा है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया था, डिटरमाइन टू अचीव हार्टमैन्स डिजायर्ड एसेट एलोकेशन एंड बॉन्ड पोर्टफोलियो मॉडिफाइड ड्यूरेशन द नंबर ऑफ इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स, ये अपना हो गया था शायद 262 फ्यूचर्स सेल, और ये 350 शायद फ्यूचर्स बाय, आई डोंट रिमेंबर, शायद ये फिगर्स थे। क्वेश्चन टू, वन वीक बिफोर एक्स, और 305 था, बोला 305, 305 फ्यूचर्स बाय वट एवर। ठीक है ना, ये 305 फ्यूचर्स बाय था, 262 फ्यूचर्स सेल इक्विटी का, 305 फ्यूचर्स बाय बॉन्ड का। अब उसके बाद वन वीक बिफोर एक्सपायरेशन विच शॉर्ट कॉल ऑप्शंस डेल्टा हेज इज मोस्ट डिफिकल्ट टू मेंटेन, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। वन वीक बिफोर एक्सपायरेशन, जब एक वीक बचा हुआ है, तो आप लोग ने बोला ना डायनेमिक हेजिंग है, तो कौन सा कॉल ऑप्शन का डेल्टा इज मोस्ट डिफिकल्ट टू मेंटेन, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स, जस्टिफाई भी बोले। कौन सा कॉल ऑप्शन का डेल्टा हेज करना सबसे डिफिकल्ट है? वन वीक के पहले मार्केट 4440 है, वन वीक के पहले मार्केट इज 4440। यस, एवरीबडी इज गिविंग द करेक्ट आंसर, आई विल चेंज इट, डोंट वरी। 4440 है, वन वीक के पहले मार्केट जो है 4440 है। तो बोल रहा है कौन सा सबसे डिफिकल्ट टू मेंटेन है, एंड जस्टिफाई, जस्टिफाई का ही मार्क्स है। सो एवरीबडी हैज गिवन द आंसर सर, नियर एट द मनी वाला 4450 इज मोस्ट डिफिकल्ट टू मेंटेन। रीजन क्या दोगे, जस्टिफिकेशन क्या दोगे? शिविक बंसल बोला हाईएस्ट गामा, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। हाईएस्ट गामा, फुल मार्क्स। डेल्टा इज हाई, रॉन्ग। अक्षत जैन, डेल्टा इज हाई नहीं, किसने बोला? प्रीति गोयल ने बोला डेल्टा इज हाई, 0 मार्क्स। प्रीति ने बोला डेल्टा इज हाई, 0 मार्क्स है, इसका हाईएस्ट गामा है। ओके, हाईएस्ट गामा है यानी कि डेल्टा इज फ्लक्चुएटिंग वेरी वाइल्डली, तो अकॉर्डिंगली रीबैलेंसिंग बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे करना पड़ेगा। यस, हाईएस्ट गामा एंड देन एंड हाई पॉसिबिलिटी ऑफ वाइल्ड मूव्स इन व्हाट, अर्नव जो तुमने बोला, हाईएस्ट गामा एंड हेंस पॉसिबिलिटी ऑफ वाइल्ड मूव्स इन व्हाट? अर्नव बोल रहा है हाईएस्ट गामा एंड हेंस पॉसिबिलिटी ऑफ वाइल्ड मूव्स इन व्हाट? जितेंद्र बोल रहा है वेगा भी बोल सकते हैं क्या? एकदम ही नहीं, नहीं बोल सकते हैं वेगा। वो तो आपका वो बोलने का मन, मेरे को कुछ और आता है, मैं वो भी बोल सकता हूँ क्या? इसके थीटा के बारे में बोल सकता हूँ क्या, इसका थीटा हाईएस्ट है? नहीं बोल सकते। कैथरीन, एटीएम कॉल एंड डेल्टा, एटीएम कॉल डेल्टा स्विंग्स वाइडली एंड हाईएस्ट गामा, हेंस डिफिकल्टी टू मेंटेन डेल्टा, फुल मार्क्स। बट तुमने एटीएम कॉल डेल्टा बोला, वैसे पता होगा एटीएम कॉल डेल्टा हो या पुट डेल्टा हो, इट स्विंग्स वाइल्डली, डेल्टा स्विंग्स वाइल्डली। यस, वाइल्ड स्विंग्स इन डेल्टा। ठीक है, दैट इज हाईएस्ट गामा, फुल मार्क्स, नो नीड टू ऑप्टिमाइज।
नो नीड टू ऑप्टिमाइज, नाउ आई एम चेंजिंग द सम। सपोज सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, और बोला है कि ये वाला 1 वीक का है, ये वाला 1 वीक का है, और ये वाला जो है ना, ये 1 मंथ का है। प्लस बोला है स्टॉक का दाम चल रहा है 4320। तब कौन से में ज्यादा डिफिकल्टी होगा? डेल्टा हेजिंग में सबसे ज्यादा चैलेंज किस में आएगा? C1 1 वीक है, C2 1 मंथ है, C3 1 वीक बाकी है, स्पॉट प्राइस 4320 है। तो उस केस में किस में अपना सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगा एंड वाई? किस में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगा एंड वाई? डेल्टा हेज मेंटेन करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस में होगा? रमन गर्ग कृष्णा करेक्ट आंसर है। रमन गर्ग का आंसर है सर, बिकॉज इट्स ATM एंड नियर टू मेच्योरिटी, फुल मार्क्स। ओके, C1 इज द आंसर, इट्स ATM एंड नियर टू मेच्योरिटी। Okay, so gamma is determined by moneyness and also nearness to maturity. Gamma is determined by moneyness and also nearness to maturity. Gamma is determined by moneyness and also nearness to maturity. जितना मेच्योरिटी के पास जाएंगे गामा हाई हो जाएगा। इन केस किसी को गामा हाई का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मेरे लैंग्वेज में इट्स सैंडी सुंडी। सैंडी सुंडी का मतलब सर, अगर 4320 पे बाजार है ना, 4320 पे, तो उस केस में जब भी शेयर का दाम 4320 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, डेल्टा विल बिकम 1। और जब भी शेयर का दाम 4320 को क्रॉस करके नीचे जाएगा, डेल्टा विल बिकम 0। डेल्टा विल जंप फ्रॉम 1 to 0, 1 to 0, 1 to 0। ओके, डेल्टा जोर से जंप करेगा फ्रॉम 1 to 0, 1 to 0। समझ में आई ये समझने के लिए? दिस इज नॉट टू राइट इन द एग्जाम, देर इज नो नीड टू राइट दिस इन द एग्जाम, बट हैव यू अंडरस्टूड दिस सैंडी सुंडी? ओके, वाइल्ड स्विंग्स का मतलब है कि सर इन द मनी होते ही डेल्टा बिकम्स 1, और आउट द मनी होते ही डेल्टा बिकम 0। नियर 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 एट द मनी ऑप्शंस, near at the money options closer to maturity, the delta swings widely from 0 to 1, 1 to 0, 0 to 1 and 1 to 0. I hope the communication is clear. Okay, 0 to 1, 1 to 0. Perfect. Within the same mandate, Hartman is asked to propose a tactical options overlay on the same equity index used in Exhibit 2, index level 4440. Given her views that the index will be largely unchanged over the next 3 months, but is bearish over the following quarter. Expectation है index will not change over the next 3 months, but it's bearish over the following quarter. The consensus sentiment favoring a flat market shows no signs of changing over the next few months. What is the meaning of this language? The consensus sentiment favoring a flat market shows no signs of changing over the next few months. The desk provides an out of the money put option, strike for 4440, with no material IV differences and standard contract specification. तो 3 मंथ का पुट है, 6 मंथ का पुट है, 3 मंथ पुट, 6 मंथ पुट। कार्तिक बोल रहा है सर कैलेंडर स्प्रेड, कार्तिक बोल रहा है कैलेंडर स्प्रेड करेक्ट है, हाफ करेक्ट है, ठीक से बोलो। और क्या? किसी ने बोला शॉर्ट पुट रॉन्ग है? निश्चय ने एकदम क्लियरली बोला, विकास ने भी क्लियरली बोला लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड। वेरी गुड, लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड। शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड रॉन्ग आंसर है। अक्षत रॉन्ग है, कृष्णा रॉन्ग है। द नेम ऑफ द कैलेंडर स्प्रेड डिपेंड्स अपॉन वेदर कैलेंडर स्प्रेड को बनाने में आउटफ्लो हो रहा है कि इनफ्लो। तो अपने 3 मंथ्स वाला तो सेल करेंगे बिकॉज फ्लैट रहने वाला है, 6 मंथ वाला बाई करेंगे, तो नेट आउटफ्लो है। नेट आउटफ्लो कितना? 59। इसका मतलब इट्स लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड। सोचो अगर तुमको एग्जाम में लॉन्ग या शॉर्ट के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है तो नाम लिख के मत आना, कैलेंडर स्प्रेड लिखना, और ये लिखना 3 मंथ्स वाला सेल, 6 मंथ्स वाला बाय। लॉन्ग और शॉर्ट लिखना मत, समझे? बेवकूफी के जैसे लॉन्ग शॉर्ट लिखना मत, इन केस यू आर कंफ्यूज्ड। वैसे लॉजिक क्या है? अगर किसी स्प्रेड को बनाने में आउटफ्लो हुआ, डेबिट स्प्रेड है तो लॉन्ग माना जाएगा, और क्रेडिट स्प्रेड है तो शॉर्ट माना जाएगा। द नेम ऑफ अ स्प्रेड इज बेस्ड ऑन वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट। एम आई कम्युनिकेटिव? आई होप एवरीबडी इज क्लियर कि 3 मंथ वाला सेल करना है, 6 मंथ वाला बाई करना है, बिकॉज 3 मंथ में फ्लैटिश व्यू है। जब फ्लैटिश व्यू है तो प्रीमियम खाने का मन करता है,
और 6 मंथ में बेयरिश व्यू है, 6 मंथ में बेयरिश व्यू है। ओके, 6 मंथ में बेयरिश हुए है, इसलिए पी प्लस कर रहे हैं। कृष्णा बोल रहा है यस सर, द नेम लॉन्ग और शॉर्ट डिपेंड्स ऑन द लॉन्ग टर्म ऑप्शन। वो एक तरीका है बैठाने का, और अगर वो बैठाए नहीं तो हमेशा स्प्रेड स्ट्रैटेजी में अगर डेबिट स्प्रेड है तो वो लॉन्ग है, क्रेडिट स्प्रेड है तो वो शॉर्ट है। वैसे लॉन्ग शॉर्ट वर्ड यूज ही मत करना ना, बेस्ट है। ठीक है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मिडिल लाइन विच आई अंडरलाइंड? द कंसेंसस सेंटिमेंट फेवरिंग अ फ्लैट मार्केट शोज नो साइंस ऑफ चेंजिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट लाइन? क्वेश्चन हो गया, अपने इस तरह से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट लाइन? आईवी इज लो, इट मीन्स आईवी इज लो, इसका मतलब सस्ता ऑप्शन है। आईवी इज लो, यस एचआर, आईवी इज लो। अंशुल गुप्ता करेक्ट, गोपाल करेक्ट, आईवी इज लो। बाजार में स्टेबिलिटी है, आईवी इज लो, सस्ता ऑप्शंस मिल रहा है, सस्ता ऑप्शंस मिल रहा है, आईवी इज लो। ठीक है, दैट्स द ग्रेट पार्ट ऑफ व्हाट इज आईवी इज लो। ठीक है, तो अगर 3 महीने बाद, 3 महीने बाजार सेम रह गया, तो जो 3 मंथ वाला ऑप्शन मजा आ गया पैसा खा के, और 6 मंथ वाला ऑप्शन चलेगा, और फिर बाजार अगर गिरा तो आईवी बढ़ेगा, तो आपको फायदा होगा डेल्टा का, आपको फायदा होगा वेगा का। ओके, ऑफ कोर्स थीटा घाटा होगा, बट डेल्टा और वेगा का फायदा होगा। आईवी इज ऑल्सो गोइंग टू राइज बिकॉज ऑफ योर बेयरिश व्यू। एक तो द मार्केट इज गोइंग टू फॉल एंड आईवी इज गोइंग टू राइज। डबल फायदे में बैठे हुए यहाँ पे, डबल फायदे में बैठे हुए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ डबल फायदे में बैठे हुए हैं। गॉट इट? वेरी गुड स्ट्रैटेजी, बाजार में बहुत अच्छा वर्क करता है ये स्ट्रैटेजी। अगर आपका बुलिश और फ्लैटिश व्यू है तो क्या करेंगे? 3 मंथ में बुलिश व्यू है और 6 मंथ में फ्लैटिश व्यू है तो क्या करेंगे? 3 मंथ में बुलिश व्यू है और 6 मंथ में फ्लैटिश व्यू है तो क्या करेंगे? तो बोल रहा है 3 मंथ कॉल बाय, 6 मंथ कॉल सेल, 3 मंथ कॉल बाय, 6 मंथ कॉल सेल। ऑफ कोर्स। ठीक है, सो दैट वाज कैलेंडर स्प्रेड, सस्ते आईवी पे मिल रहे हैं यहाँ पे। नहीं, बुल कॉल स्प्रेड नहीं होगा, वंश ने बोला बुल कॉल स्प्रेड अलग होता है वंश, उस पर 3 मंथ 6 मंथ का चक्कर नहीं होता है, गलत कर रहे हो वंश, बर्बाद हो जाओगे। बुल कॉल स्प्रेड में 3 मंथ 6 मंथ का चक्कर नहीं होता है। दिश्ता बोल रही है सर 3 मंथ कॉल और 6 मंथ पुट बाई करेंगे, बट दिश्ता दैट वुड बी लाइक बोथ बाइंग ऑप्शंस, so that would cost you in terms of gamma. Anyways, I wanted to discuss with you all preparation strategy. So I am stopping the screen share and opening the house for comments. So can you all please raise your hands who want to discuss the situations? Yes, please. Can you all please raise your hands who want to discuss their situation? Avdesh Shingal has raised his hand. हाय गुड आफ्टरनून सर। Hi Avdesh, tell me. सर मैंने अभी लास्ट वीक मॉक दिया था, उसमें मेरा 60% एक्यूरेसी आया है। सो मैं उसी के लिए थोड़ा सा टेंस था, और कल वाला मॉक भी दिया तो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। पहली बात है, ये जो लास्ट अभी 20-25 डेज बाकी हैं, इनमें बहुत अच्छे से एक्यूरेसी इंप्रूव होने का स्कोप है। हम लोग के मॉक्स के अलावा बाकी जो मॉक्स है, स्क्वाइजर के अगर मॉक्स होते हैं या पता नहीं यू वर्ल्ड के मॉक्स होते हैं, तो वो वाले मॉक्स भी देने का करना चाहिए बीच में। ठीक है, जिनके भी करंट मॉक्स है, लेटेस्ट मॉक्स है, वो देने चाहिए। और उनका अब इतना एक्सपीरियंस हो गया तो उनका सेल्फ ग्रेडिंग और उस तरह से कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो 60 आप बोल रहे हैं, दिस विल इजीली क्रॉस ओवर 70 इफ यू आर डूइंग दिस इन दीज कमिंग डेज ऑल्सो। 60 का जो गड़बड़ हुआ आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली बैठ के, कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुआ, क्यों गड़बड़ हुआ, कहीं पे
था ना, जैसे गामा का बात करना है, वेगा का बात कर रहे हैं, या कहीं पे क्वेश्चन को रीड नहीं किए, दैट्स द मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम, दैट क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं किए, कुछ और मन में आ गया रीड करते ही, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, या टॉपिक जो वही ध्यान नहीं था जब मॉक दिए, तो दे कुड बी मिक्स्ड थिंग्स। तो यू विल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट दैट वे कि कहाँ पे स्मार्टनेस की प्रॉब्लम है, कहाँ पे मेहनत की प्रॉब्लम है। श्योर, थैंक यू सर। कृतिक खुराना। Hi, sir. हाय। Sir, so I have given the CFA level 3 last year as well, and uh, you know, I could not clear by one question, so my score was 3575 something. ओके। And this year, I have completed all the syllabus, and I have completed 50%, more than 50% of the institute portal questions. Now, in the rest 25 days, now what's happening is I've not started with mocks, and when I'm revisiting the topics, I feel like that I could not remember all of it. And this is, making me more tense. And what, according to you, would be the best strategy for me for now? First being to revisit all the topics नो again. नो नो, देन यू विल कीप ऑन डूइंग दैट, यही तो प्रॉब्लम है। विल कीप ऑन डूइंग दैट। आप अभी 10 दिन फिर से लगाएंगे रिविजिट द टॉपिक, फिर आप जो दूसरा रिविजिट वाला है वो भूल जाएंगे। मतलब दिस इज द रीजन वाई 3575 और जो 3625 में जो डिफरेंस होता है, इसी कारण से होता है। आपको पैरेलली मॉक स्टार्ट करना ही पड़ेगा अभी। इफ यू डोंट स्टार्ट द मॉक्स, वो बॉर्डर लाइन वाली इश्यू होगी, लक की बात है फिर अल्टीमेटली। तो रिवीजन की बात अलग है, आपको मॉक स्टार्ट करना ही पड़ेगा। यू गॉट टू स्टार्ट मॉक्स एंड गॉट टू इंश्योर दैट एवरी डे कुछ एथिक्स का करते जाएं। अब तो फाइनल टाइम आ गया ना, तो मॉक्स एंड साइड में एथिक्स, ये दोनों जरूर हो। उसके अलावा आपको जो रिवीजन वगैरह करना है करते रहिए। तो सर, जो इंस्टीट्यूट के लेट्स से रिमेनिंग 50% ऑफ द क्वेश्चंस और ब्लू हो बॉक्सेस है जाएंगे, वो। आपको पता है मैं जो बोल रहा हूँ उस पर इम्पॉसिबल नहीं है, बट आप ये जो सोच रहे हैं ना पहले वो कर लूँ फिर मॉक्स पे जाऊं, वो गलत है। ओके, तो डजेंट मैटर। आप वो कॉमन अकॉर्डिंग सेंस से मॉक्स देंगे, पता रहेगा आपको यार ये वाला रिवाइज नहीं किया हुआ था इसलिए गलती हुआ है। पर मॉक्स में जब वो क्वेश्चन आएगा तो ट्राई तो कीजिएगा उसको एक बार अपने बेस नॉलेज से, फर्स्ट प्रिंसिपल से। कई बार चीजों को फर्स्ट प्रिंसिपल से लेने से वो कॉमन सेंसिकली राइट हो जाती है। ओके सर, गॉट इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। आदित्य मेहरा। Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग। So, sir, like right now from last, so I'll just give you a small gist. I have covered the whole portion once. I've went through the portal questions. I've went through the blue boxes and examples from the core as well. So from last Monday onwards, only I started revising, revisiting the topics as well. But the same issue is that the maximum cheese I have forgotten. Like right now, the second question which you are doing, cheese malum thi, but I was not able to type the answers as well. So this is the issue which I am facing. Side by side, yesterday I gave the mock, knowing that अगर उसमें zero भी आएगा, I am not stressed because I have not yet revised the whole curriculum once. But the वही issue है कि वो याद नहीं हो रहा है, याद आ नहीं रहा है, and the days are very limited now to revise the whole portion. And one more thing, sir, like in a level 3, the portal questions for ethics are way too difficult. So I am facing a lot of problem. So I'm not sure कि वो मेरे end से problem है या ethics के questions बहुत difficult थे. So if नहीं you है, can give just small, नहीं वो uh, डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट है। मतलब okay. ये लोग एथिक्स को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। तो वो डिफिकल्ट है आपको। मतलब अब उसका एक उपाय ये है जो मैं बोलना नहीं चाह रहा, वो है सीएफए इंस्टीट्यूट का जो अलग से एथिक्स का हैंडबुक होता है सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। तो अब किसके पास टाइम है कि वो एथिक्स का अलग से जाके हैंडबुक से प्रिपेयर करेगा? ठीक है, तो द ओनली वे इज दैट इन क्वेश्चंस को और क्लॉड में डाल के और उससे जो समझ सके। पर इफ यू डू दैट तो इन दैट केस एवरेज से नीचे परफॉर्मेंस गिरेगा नहीं। बट इफ समबडी इज अवॉइडिंग एथिक्स, तो उस केस पे रिस्क है उसका कि बिलो एवरेज एथिक्स में आ जाएगा। Okay. And so for the एंड remaining, what you can guide me? फॉर द रिमेनिंग सेम चीज जो मैंने बोला अभी इसके पहले कि जैसे समझ लो मैं तो ये देखता हूँ, अभी आप ये क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे थे तो देयर वाज अ स्ट्रेस ऑफ द इन्वायरमेंट। मैं पूछ रहा हूँ, आपको लग रहा है अरे मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ सर, इतने दिन वेट कर रहे हैं। मेरे को लगता है अगर यही क्वेश्चन आप आराम से अपने लेवल पे घर पे खोले होते ना, तो इन दैट केस आपका दिमाग भी चलता, आंसर भी देखते आप, देख के समझते, समझने के बाद आप दूसरे क्वेश्चंस जो को रीडिंग के एंड में हैं उन पे जाते, तुरंत आप ये टॉपिक थ्रू थ्रू रिवाइज करते और फिर आप आगे बढ़ते। माने मॉक्स आपको वो भी मौका देगा कि मॉक में आपको से क्या बोलते हैं, गोल गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग जीबीआई का एक क्वेश्चन दिखा,
अचानक से माइंड से चला गया है, आपने प्रैक्टिस किया, फिर जीबीआई का 2 सम्स और पहले जो किया वो आके देख लिया, तो रिवीजन तो हो ही रहा है ना, पर एक रिवीजन वैसे करना और एक मॉक के थ्रू करना, दोनों में डिफरेंस है। Okay. तो मेरे Okay, ख्याल sir. से मॉक के थ्रू रिवीजन में जाना बेटर रहेगा कि ये वाला किए, गड़बड़ हुआ, चलिए देखते क्या किए थे क्या नहीं किए थे, तो डू द रिवीजन, बट लेट द मॉक बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। Okay. Okay, sir. Thank you so much. ओके, वंश फिर से। जो सर। यस वंश। सर मेरा जो डाउट था ये सब लोगों ने पूछ ही लिया, मेजर तो मैं समझ गया, अब रिवाइज कैसे करना है। बस जब वो क्वेश्चन आंसर में जब आंसर लिखने जाते हैं ना, तो उसकी जो लैंग्वेज है ना वो एकदम वेग लगती है, एकदम इंस्टीट्यूट वाली नहीं लगती है, फिर टर्मिनोलॉजी नहीं मिलती है कभी कभी। अभी तो आप देख रहे थे ना, जैसे जवाब जो मिल रहा था, मैंने कितना टू द पॉइंट कि ये वाला कॉल ऑप्शन क्यों ठीक है, बिकॉज इसमें हाईएस्ट गाम है, दैट्स इट, खत्म। ज्यादा टान टून के करने मतलब ही नहीं है, एकदम लॉजिक से सोचना, और वो लॉजिक तभी आएगा जब मॉक्स में वो लॉजिक लगाएंगे, अदरवाइज आएगा नहीं, फैले हुए रह जाएंगे, सारा चीज ऑप्शंस का एक साथ याद आएगा। अरे यार, नियर एट द मनी है तो उस पे तो थीटा हाई है, थीटा से मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो हमने थीटा का लिख के आएंगे। बाकी सर एक उसमें पता चले पर्सनल ग्रेडिंग के दिए थे ना क्वेश्चन, तो पता चला था मैं कई बार भूल जाता था कि वो जस्टिफाई लिखा है, तो मैं जस्टिफाई लिख दिया था, पर जो डिटरमाइन करना था वो लिखा ही नहीं, तो फिर वो चेक ही नहीं हुआ, तो वो आंसर ही पूरा रॉन्ग हो गया। ध्यान देना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। थैंक यस कुणाल। हाय सर। हाय कुणाल, कैसे हो? बस बस बढ़िया हूँ सर। सर, थोड़ा सा हट के है मेरा प्रॉब्लम। जैसे सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, एथिक्स चल रहा है पैरेलली, एथिक्स छोड़ के बोल रहा हूँ। अभी एसेट एलोकेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट किया था कल का मॉक देने से पहले। अब उसमें ये जो 4 मेथड्स थे ना, वो रीसैम्पल्ड, एमबीओ, ब्लैक लिटरमैन, ये चारों पे जब क्वेश्चन पूछ रहा है ना सर, मतलब अभी इस तरह के वो इतना डिग करके पूछ रहा है, जब क्वेश्चंस बना रहा है वो सारे रॉन्ग हो रहे हैं, किसी में कोई एक पॉइंट छूट जा रहा है, क्वेश्चन मैंने किसी तो में बोलना चाह रहे पॉइंट। तो वो वाला पार्ट को जीपीटी में डाल के क्वेश्चन बना रहे हैं। हाँ, जीपीटी क्लॉड यूज़ किया, हाँ। और मैंने थोड़ा सा उसको बोला है कि मेरे को ना ग्रिल कर दो, वो टाइप से। अब मेरे को पता नहीं, लेकिन सीएफए स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए तो उसमें वो क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं ना कि अगर 4 पॉइंट है उसमें और वो 3 पॉइंट राइट बोल रहा है और एक चौथा पॉइंट बोल रहा है, वो सारे टेस्ट तो हो जा रहे हैं बट सारे रॉन्ग हो रहे हैं। इफेक्टिवली 6 में से 2 राइट हो रहे हैं, 2 राइट। तो मेरा तो कल नहीं तो वो, टेस्ट देते वक्त भी बहुत मूड खराब हो रखा था। आई विल टेल यू दिस दैट वो पोर्शन ऑब्वियसली वेग है ही, बिकॉज कौन सा उसको एक्चुअल मॉडल में देख रहे हैं अपने क्या हो रहा है एमबीओ में, तो उस पोर्शन से सॉफ्ट क्वेश्चंस पूछता है, उस तरह से ग्रिल कर दो वाला पूछता नहीं है। तो तुम, माने तुम अगर उस पर जा रहा है तो यू हैव टू सी दैट, माने मेरे ख्याल से तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट किया बहुत काम आएगा, अगर उस पोर्शन से अल्टीमेटली एग्जाम में आ जाता है ना, तो एग्जाम में जो आएगा वो सॉफ्ट आएगा, और तुम जो अभी टाइम दिया है वो वहां पे काम आएगा, पर तुम दुखी हो जा रहा है कि उस लेवल पे उतना डिग नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो गलत है। वो तो तभी होगा जब पूरा मॉडल तुम्हारे सामने है। सर कल मतलब इस डर के मारे मैंने जब टेस्ट देना शुरू किया, मैं एसेट एलोकेशन को डेफर कर दिया बीच में, ऑर्डर में नहीं करके मैंने उसको थोड़ा सा डेफर कर दिया कि बाद में आने तो जस्ट नहीं एक नहीं, बार तुम रिदम तुम बैठने दो करता, आई डोंट टेस्ट नो का। तुमने किया कि नहीं किया, अल्टीमेटली तुम करता तो तुम्हारा उस पर राइट जाता। नहीं, कर लिया मैंने अटेम्प्ट सारे किए, मेरा खाली 2 डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं हुआ, जो अभी भी मेरा डिफिकल्ट एरिया है। सेकंड प्रॉब्लम यही था कि डेरिवेटिव अभी भी डिफिकल्टी हो रहा है। आज जो आपने क्वेश्चन दिखाया वो कल आया, मैंने इसी लाइन पे सॉल्व किया, मेरे को पता नहीं, मैंने लेकिन डिटेल में किया क्योंकि मेरे को डाउट रहता है थोड़ा सा, तो स्कोरिंग आएगा तो पता आई चलेगा। थिंक देखो कुणाल, अभी तुम ऑप्शंस तो मेरे साथ ही किया था 1 महीना 1.5 महीना पहले, हाँ हाँ। है ना? नहीं, ऑप्शंस नहीं किया था ना सर, ऑप्शंस का क्लास मैंने सिर्फ लास्ट के 2 या 3 किए थे। ठीक है, और ये फ्यूचर्स का यहाँ पे ये आइडिया हुआ, उसके बाद तो करेंसी ही है, तो ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम लगे रहो तो हो जाएगा, बट कुछ कुछ एरियाज है, जैसे वो था ना एमबीओ वाला, उसमें अगर बोलेगा ग्रिल करो मेरे को, तो उसमें कॉन्फिडेंस तो टूटने नहीं, वाला है। ग्रिल तो मैंने वर्ड आपको बोला, ग्रिल हाँ। मतलब मैंने उसको बोला कि थोड़ा डिफिकल्ट दो मेरे को, सीएफए स्टैंडर्ड से जरा सा ऊपर, उस तरह से। एग्जैक्ट ग्रिल वर्ड नहीं यूज किया मैंने। ठीक है, समझ गया। हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, ठीक चलो है। बाय। युक्ति मित्तल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग युक्ति। सर मेरा प्रॉब्लम एक्चुअली
ये है कि सिंस मैं ऑफिस के साथ स्टडीज मैनेज कर रही हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने क्लासेस तो सारी कंप्लीट कर लिया है, बट जो सेल्फ रिवीजन होता है वो मैंने 2 सब्जेक्ट का कर लिया है। और अभी मतलब और मेरे 4 सब्जेक्ट बचे हैं। तो मैं ये इसी वजह से मैंने कल का मॉक ही नहीं दिया था। तो मुझे ना लाइक आई एम वेरी स्कैर्ड कि कैसे करना है और मतलब मैं कैसे स्टडी करूँ। तो सेम क्वेश्चन देखो युक्ति, मतलब दिस इज द जनरल प्रॉब्लम विथ एवरीवन, दैट टॉपिक अगर याद नहीं आता है, लगता है बहुत दिन हो गए हैं, तो फिर लगता है मॉक्स भी क्या दें। बट इससे क्या होगा, अल्टीमेटली अपने पहुंच जाएंगे एग्जाम के डेट के 1 सप्ताह पहले, और वहां पे भी मैं गारंटी कर रहा हूं आपको, ये नहीं लगेगा कि मैं, आपको लगेगा और एक बार रिवाइज कर लेती हूँ सारा। इसका कोई जी नेवर एंडिंग कोई उपाय नहीं है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिवीजन, आप प्लीज मॉक स्टार्ट करो, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से दो, ठीक है, उसके हेल्प और साइड में आप रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। और कई बार आप जो मॉक्स में क्वेश्चन आए, उस एरिया को जाके रिवीजन करो उठा के, बिकॉज उस समय मॉक्स में माइंड में गया है, उस समय ऐसा 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, उस एरिया को कवर करेंगे तो वो हो जाएगा। मैंने यही रिपीट किया इसके पहले, ओके सर। हो जाएगा बिलीव मी। बट केवल अगर रिवीजन करते रहेंगे तो दिक्कत होने वाली है। लास्ट पे क्या होगा ना, सबसे दुख की बात, वो 3600 से जस्ट कम वो वाला चीज, मतलब पूरा रिवीजन कर लेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है। पर प्रॉब्लम है ना, अगर 25-50 कम आ जाते हैं तो यस सर। एकदम सर नेसेसरी है एक्चुअली वो। मैंने अभी छुट्टी भी ली हुई है लाइक फॉर द नेक्स्ट 4 डेज, तो मैं प्लान करूँ कि मैं 3 से 4 दिन में अपना पूरा रिविजन खत्म कर दूंगी। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ठीक है, बट उसके बाद जब रिवीजन कर लेंगे तो वापस ये मत बोलिएगा मैं भूल गई हूँ, मतलब उस केस पे मॉक्स के थ्रू ही नो जाना। नो सर, लाइक हाँ, फर्स्ट टाइम। और यस एथिक्स सर, का फर्स्ट एथिक्स टाइम तो मैं एक बार रिविजन। या और एथिक्स का ध्यान रखिए, सब जन बोल रहे हैं मतलब इट मैटर्स, डिफिकल्ट स्टफ है, यस इशू आ सर। सकती है, तो एथिक्स को रोज कीजिए। अगर अपने सोचेंगे ना नहीं एलवन में मेरा बढ़िया गया था, ऐसे नहीं होने वाला है, दे आर ऑपरेटिंग एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। यस सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। हम्म, ठीक है। अभी टुडे इज आई थिंक व्हाट एवर 19th, सो मैं तो नेक्स्ट वीक संडे संडे अब डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट टर्म के लिए वो चालू करने वाला हूँ, क्या नाम है, ये फ्यूचर्स वाला चैप्टर, फ्यूचर्स फॉरवर्ड वाला। तो अपने बीच में जनरल मिलते रहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग एंड डिस्कशन, ओके, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ दीज क्वेश्चन सॉल्विंग, बट फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग एंड डिस्कशन, ऑफ ट्रैक कहीं पे भी टाइम निकाल के। एंड मेरे को लग रहा है, बता रहा हूँ मैं जो पहले ही बोला था, कि इस बार का रिजल्ट मेरे टाइम सीरीज वाइज ज्यादा बेटर होने वाला है लेवल 3 का। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। थोड़ा सा आप लोग और कर सकते हो इस पे हेल्प, कि आप लोग प्लीज मॉक्स चालू कर दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रेपरेशन। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट फॉर अ गुड प्रेपरेशन। सब मेरा एक क्वेरी है। हाँ बोलिए। सर मेरा प्रिपरेशन एंड प्लस मॉक टेस्ट दोनों से रिलेटेड एक क्वेरी है। जैसे प्रिपरेशन में सर जो भी नोट्स आपने दिए, उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए उसको भी मैंने लिख लिए जहाँ पे मेरे गलत हुए। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है एक कॉम्प्रिहेंसिव मेरे पास पूरे नोट्स तैयार हो गए हैं, जितने भी जिस भी लेवल पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस पूछे हैं और या तो क्वेश्चंस दिए हैं। मेरा सर क्वेश्चंस एक तो मेरा ये है, क्या ये मेरा लाइन ऑफ एरिया ठीक है जिस तरह से मैं जा रहा हूँ? एक तो मेरा क्वेश्चन वो है। दूसरा सर, जो कल मैंने मॉक दिया सर, वो मॉक में मतलब आई डोंट नो इट्स अ लैक ऑफ स्पीड और व्हाट, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा लेंदी मॉक था और ना थोड़ा टाइम कंज्यूम ज्यादा हुआ, क्योंकि लास्ट वाला जो केस स्टडी था 4 क्वेश्चंस का, वो मेरे से छूट गया। तो वहां से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया। फर्स्ट चीज का जो जवाब है वो ये है कि देखो, लेवल 3 में आते आते स्टूडेंट्स ने बहुत स्टडीज कर ली है। मैंने एकेडमिक्स इज समथिंग दैट ऑल ऑफ यू हैव रियली इन्वेस्टेड टाइम। कुछ कुछ लोग CFA L1 L2 बढ़िया से किए, कुछ FRM कर रहे हैं साथ में, कुछ CA कर रहे हैं। तो लेवल 3 आते आते इट ऑफन बिकम्स लाइक ये लास्ट एग्जाम है, तो आपका एक स्टडी का स्टाइल बचपन से डेवलप हो गया है, तो वो स्टाइल को आप ऑब्वियसली हर एग्जाम में यूज करते ही हो। तो आई कैन नॉट से दैट अपना नोट्स इस तरह से बनाना गलत तरीका है, मतलब ये मेरा बोलना बहुत गलत होगा। दिस इज समथिंग विच इज वेरी कस्टमाइज्ड। तो आई थिंक यू शुड नॉट लीव योर स्टाइल एंड अप्रोच। और लिखने से बैठता तो आज के डेट पे है ही। और जो आप लेंदी का बोल रहे हो, तो द पॉइंट इज दैट पेपर्स आ रहे हैं उस तरह के, मैंने ऐसा नहीं है कि पेपर जानबूझ के एक्स्ट्रा लेंदी कराया हुआ था। हाँ, पेपर अगर तीन माने 3 तरह के आ सकते हैं, तो मैं बोलूंगा थर्ड टाइप का था, बट वैसा टाइप का भी आता है पेपर। इट वॉज नॉट अनरिप्रेजेंटेटिव ऑफ द CFA इंस्टीट्यूट।
ओके सर, मेरे कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि उसमें मार्क्स नहीं थे लेकिन वो जस्टिफिकेशन बहुत ज्यादा मांग रहा था हर एक चीज का। तो आपको तो छोटा लिखना था। जैसे उसने कहा कि अगर आपने जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो चूज कीजिए, उसका जस्टिफिकेशन दीजिए, अलोंग अलोंग विद उसने ये भी पूछ लिया कि क्या चूज नहीं कर रहे उसका भी जस्टिफिकेशन दीजिए, और मार्क्स थे शायद 3 या 4 ऐसा कुछ। कहीं कहीं पे बायस आया था, जहां पे बनाते समय क्वेश्चन लगा था कि काश स्टूडेंट दूसरे को भी ना कर पाए, उससे उसका रिवीजन होगा, ये आ जाता है। माने ये एक बायस आ जाता है कि हम लोग मॉक्स सेट करते हुए लगता है कि काश इतना कवरेज हो जाए कि मतलब वो हो जाए। पर आपने ठीक बोला, ऐसा यूजुअली लैंग्वेज रहता नहीं एग्जाम में। जस्टिफाई वाई दिस इज राइट एंड ऑल्सो जस्टिफाई वाई दी अदर्स आर रॉन्ग। ठीक है, तो ये मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, एक बायस है। बस सर कल के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो गया, मतलब आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आराम से हो कोई जाएगा, इशू पर नहीं है, अभी जहां पे खड़े हैं अपने, कॉन्फिडेंस अगर गड़बड़ होता है उससे स्ट्रेस आता है, दैट इज गुड। ओके, ये हाल अपने को 7 दिन पहले 6 दिन पहले नहीं करना है, ये अभी करना है। ठीक ओके है, सर। चलिए, ओके सर, ऑल द थैंक बेस्ट, यू। बाय।